Good morning, class. Today we'll start with class 9 Political Science, Chapter 5, Democratic Right, and this is our 7th lecture. And our first topic is Cultural and Educational Right. Cultural and educational rights. So, under the fundamental rights, this is our one of the important right, cultural and educational rights. So, let's see. You might wonder why where the Constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. So, why are there no special guarantee for the majority? So basically ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, इन्होंने क्यों सर्टेन राइट्स प्रोवाइड किए माइनॉरिटीज के लिए और क्यों नहीं मेजोरिटीज के लिए? क्योंकि हम इसको हम इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर हम हिस्ट्री खोल के देखें डिफरेंट कंट्रीज की लाइक फ्रांस और रशिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी थी वो क्या करते थे, डोमिनेट करते थे किसको, माइनॉरिटीज को। इसीलिए इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने स्पेशल राइट्स बनाए थे किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। सो इसी तरह से वेल फॉर द simple reason that working of democracy give power to the majority. It is language, culture and religion of minorities that needs special protection. क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी minorities हैं इनके culture, इनके language, इनका religion जो है वो protect करना जरूरी है, क्योंकि इनको जो है हमेशा जो majorities हैं वो क्या करते हैं, dominate करते हैं. So that is why Constitution is specifies the cultural and educational right of the minorities. So why there is a need of cultural and educational rights? So there are some points regarding the cultural and educational rights. So first point is any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. So any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. So basically we know that India is a diverse country, and in India there are so many religions are followed in India. There are so many customs, culture and traditions. To protect that particular language, culture or tradition, we have provided cultural and educational right to conserve it. And our next point is admissions to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizens
or language. Under cultural and educational right, our second right is admission to any educational institutions maintained by government or receiving government and cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. So basically हम कह सकते हैं कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, उसको कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस जो है उसके एडमिशन को मना नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज द राइट टू एजुकेशन. एंड आवर थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन. एंड आवर थर्ड पॉइंट इज and our third point is all minorities have the right to establish administer educational institution of their choice. So third point में कह सकते हैं all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. So कह सकते हैं जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, उनको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं. मींस दे कैन एडमिनिस्टर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर choice. For example, we know that there is a madrasa. For example, you all know that madrasa is a institution of Muslims in which students are taught with their language and their culture. ठीक उसी तरह से every minority in India have the right to establish and administer educational institution of their choice. So basically these are the three rights provided in the educational and cultural rights. So class, our next topic is how can we secure these rights. So class, our next topic is these so we know that in our fundamental rights we have so many rights. So इन सब rights को हम किस तरह से preserve कर सकते हैं या फिर इनको हम किस तरह से secure कर सकते हैं. So let's say if rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. अगर हम कहें कि राइट जो है अगर हमें मिला है, अगर उसकी कोई गारंटी नहीं है या फिर उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तब उस राइट का कोई मतलब नहीं है. द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सेबल. ये राइट्स जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं और इस पे हम क्लेम कर सकते हैं. वी हैव राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड राइट्स. This is called the right to constitutional remedies. So let's see what is right to constitutional remedies.
the enforcement of these mentioned राइट्स। सो हम सब जानते हैं कि राइट्स जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनफोर्सेबल है, इसको हम लागू कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में वो सारी बातें आती हैं जब एक राइट जो है आपसे छीन लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल a person is denied your right to freedom or right to education or right to cultural rights, then you have right to claim against the rights in the court। अगर आपको कोई अधिकार मिला है, अगर कोई पर्सन जो है आपको अधिकार नहीं दे रहा है, then you have right to seek rights। So we have a right to seek the enforcement of this mentioned rights। अगर आपसे कोई कहे कि you don't have right to education, for example a backward class student is going to a college and that particular college says that you don't have right to education in our institution because in our institution we don't take students of a backward classes, then you have right to seek that particular right and you can claim right in courts। सो कह सकते हैं आप उस अधिकार के लिए सरकार के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट जो है वो आपको राइट प्रोवाइड करेगी क्योंकि दिस आर द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब है अगर आपका जो भी अधिकार सरकार ने दिए हैं अगर वो अधिकार को कोई नहीं दे रहा है या फिर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, then you have right to seek the enforcement of that particular law। और इसके लिए आप जो है कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और अपने राइट्स को मांग सकते हैं। सो लेट्स सी दिस इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। और ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमें हमारे संविधान ने दिया है। सो दिस राइट्स मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इसी राइट की वजह से जो भी राइट्स हमें मिले हैं उसको हम क्लेम करते हैं। इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स मे बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। अगर कोई भी राइट्स हमसे छीना गया है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने राइट्स के खिलाफ उन पे केस कर सकते हैं और जो भी राइट्स मिलने हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। इफ इट इज ए फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ और द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। दैट इज व्हाई डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड also called the heart and soul of our So class, right to constitutional remedies is also known as the heart and soul of our constitution। इनको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, who was the chairman of the drafting committee। और उन्होंने राइट टू constitutional remedies को उन्होंने संविधान का दिल और आत्मा कहा था उन्होंने, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऐसा राइट है जिससे हम सारे राइट्स को क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्पीक, right to live, right to food, right to life, right to education, right to cultural remedies। इस तरह की जितने भी राइट्स हैं इन राइट्स को हम हासिल करते हैं इस राइट के थ्रू। सो दिस राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर द फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द
any other authority is instituted by the government. So हम क्या कह सकते हैं, what are fundamental rights? So fundamental rights So basically one question आता है, what is fundamental rights? So answer is fundamental rights are guarantee against the action of the legislative, the executive, and any other authority instituted by the government. So basically class, we know that what is fundamental rights. So fundamental rights are guaranteed against the action of the legislative, the executive and any other authority instituted by the गवर्नमेंट. सो फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो कि हमें गारंटी दिया गया है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव या फिर कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई भी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपके राइट्स को हार्म करते हैं या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वी कैन सीक अवर दैट पर्टिकुलर राइट. सो दिस आर द बेसिक टॉपिक रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स. There can be no law of action that violates the fundamental right. If any act of the legislature or executive takes any away or limits any of the fundamental rights, it will be invalid. We can change such laws of the central and state government, the policies and the actions of the government or the governmental organizations like the nationalized banks or electricity boards. For example, अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसे लोग बना रहे हैं जिससे सिटीजन्स को लॉसेस हो रहे हैं या फिर सिटीजन्स के राइट को वायलेट किया जा रहा है, देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इनवैलिड दैट पर्टिकुलर लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. या फिर मान लीजिए जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, विच आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, फॉर एग्जांपल एसबीआई, अगर एसबीआई जो है अपने कंज्यूमर राइट्स जो हमें मिले हैं उसके अगेंस्ट में वो कोई रूल बनाता है, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू इनवैलिड दैट पर्टिकुलर राइट अगेंस्ट द कस्टमर्स. ठीक उसी तरह से कोर्ट्स आल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द बॉडीज. द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. सो कोर्ट्स के पास पावर है कि वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं या फिर उनके अगेंस्ट में रिट्स फाइल कर सकते हैं. दे कैन आल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स. अब इसके तहत जो है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि मान लीजिए कोई डिफरेंट प्राइवेट बॉडी है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल है किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, देन
उसके अगेंस्ट में कोर्ट क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे या फिर गवर्नमेंट पे पनिशमेंट लगा सकती है, और जिस आदमी को तकलीफ हुई है उसको एज ए कॉम्पनसेशन पैसा भी जो है वो गवर्नमेंट उसको दिला सकती है। मीन्स देयर आर सो मेनी criteria of being violated in that particular law. So we have already seen in chapter 5 that the judiciary in our court is independent of the government and the parliament. We also noted that our judiciary is very powerful and can do whatever needed to protect the right of the citizens. So हम सब पिछले चैप्टर्स में पढ़ सके हैं कि जुडिशरी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और वो क्या क्या कर सकती है। सो इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स, द aggrieved person can go to court for remedy, but now any person can go to court against the violation of the fundamental rights if it is of social or public interest. अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमें जो है अधिकार है कोर्ट में जाने का और अपने अगेंस्ट में केसेस लड़ने का। सो इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिससे एक व्यक्ति जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कैन फाइल ए केस इन द कोर्ट। उसको लोग क्या कहते हैं, PIL। PIL इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। So there is a provision or there is a method of claiming a right in the court, either Supreme Court or High Court. People have the right to file a PIL to the court. Under the PIL, any citizen or group citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of the public interest against the particular law or action of the government. One can write to judge even on a postcard. The court will take up the matter if the judge find it public interest. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोर्ट को लगे